So, hello, my dear friends. My name is Pooja Bhandare, Assistant Professor, Dadasaheb Balpande College of Pharmacy, Besa, Nagpur. So, today we will discuss about the B.Pharm first year subject, Pharmaceutical Inorganic Chemistry, in Unit 1st. And in Unit 1st, Part 1, today we will discuss about that. Introduction of Inorganic Chemistry and History of Pharmacopoeia. So firstly, content like introduction of pharmaceutical inorganic chemistry, introduction of pharmacopoeia, and source and types of impurities, and limit test. So firstly, we will discuss about what is meant by pharmaceutical chemistry. The pharmaceutical chemistry is a science that make use of general laws of chemistry to study of drug, that is the preparation, chemical nature, composition, structure, influences of an organisms, and studied the physical and chemical properties of drug, the method of quality control, and the condition of their usage. Means pharmaceutical chemistry, it is the study of किसी भी ड्रग की केमिस्ट्री के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं उसकी क्या केमिस्ट्री हो, किस तरीके से वो प्रिपेयर होता है, देन व्हाट इज़ द केमिकल नेचर, उसका क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है. दिस स्टडी विल स्टडी ऑन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. तो इन अदर वर्ड्स, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग मीन्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. एक ड्रग की क्या केमिस्ट्री है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फार्मूला, केमिकल नेचर, सब चीज़ें हम जब स्टडी करते हैं तो हम वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वी विल डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन इज अ मेडिसिनल केमिस्ट्री, fourth one is a analytical chemistry, and fifth one is the physical chemistry. And we will discuss about only inorganic chemistry. So firstly, what is meant by inorganic chemistry? Inorganic chemistry is a deals with the study of all elements and their compounds except for the hydrocarbons and their derivatives. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑल कंपाउंड एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं, बट एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसे छोड़कर बाकी के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसकी जो भी हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Inorganic chemistry or inorganic compound will never contain carbon and hydrogen together. मतलब CH3, CH2, CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन कभी भी अगर साथ में रहा तो इट इज नॉट इनऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट इंडिविजुअली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेंट्स any atoms like CO2, H2O, HCl, etc. Inorganic pharmaceutical chemistry is a science that make use of laws chemistry to study of inorganic substance, that is their preparation, chemical nature, composition, structure, influences of an organism, etc. Then it describes the characteristics of substance obtained from the non-living things, matters, minerals which are found in the earth except the class of organic compounds. मतलब ये जो सारे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, मैटर्स हो सकते हैं, पूरे अर्थ में हमें फाउंड होते हैं. मतलब जो ऑर्गेनिक छोड़ने के बाद जो रहता है उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक. Examples like sodium chloride used in the tablet salt, silicon dioxide used in the computer chips, sulfuric acid used in the production of fertilizers. तो इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के? फर्स्टली दैट्स द फाइन
used for the replacing the normal content of the body. देखो, रिक्वायर्ड हमारे बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसमें जो भी कंटेंट होते हैं, जैसे कि अगर बॉडी में सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, वो एक नॉर्मल अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर वो कम ज़्यादा होते हैं तो हम उसको बाहर से डाइट से प्रोवाइड करते हैं, एंड इट विल बी द डाइट से। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी में सोडियम की कमतरता हुई तो हम बाहर से डाइट से उसको सोडियम प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज सोडियम इज inorganic substance. So inorganic substance is used for the replacing the normal content in the body. These are required for the normal physiological process and are required in diet. In disease conditions, मतलब अगर हम नॉर्मल कंडीशन में तो वो प्रेजेंट होते हैं, बट डिसीज कंडीशंस में जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जो भी हमें एलिमेंट लगते हैं, लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोराइड, उसकी जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं डाइट थ्रू। तो उसके एग्जांपल्स है पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयंस, क्लोराइड, कैल्शियम, सल्फेट, सोडियम, बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन, those that are used for changing reactions of body fluid, that is the acidity or alkalis, mineral acid, antacid, alkalis belongs to the category. So देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जैसे कि कभी हमें एसिडिटी हो जाती है, हमारे बॉडी में जो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो मतलब एसिडिटी हो गई, तो हम उस वक्त एंटासिड देते हैं, एंड एंटासिड इज योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो वहाँ पर एंटासिड, अगर अल्कलीज प्रोवाइड करते हैं हम उसको, कुछ चीज़ें रहा तो मिनरल एसिड प्रोवाइड करते हैं, अगर मिनरल्स की बॉडी में कमतरता हो गई तो हम वहाँ पे मिनरल एसिड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जो भी बॉडी में रिएक्शंस होती है उसके लिए भी हम हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं। दोज आर यूज्ड फॉर द चेंजिंग द रिएक्शंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज द एसिडिटी, अल्कली, मिनरल्स, एंटासिड बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। देन थर्ड एप्लीकेशन इज those that find use as a medicinal and therapeutic agents in disease condition। बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो मेडिसिनली और थेरेपेटिकली एजेंट हम यूज करते हैं इन डिसीज कंडीशन। तो उसके कुछ यूज है, दीज मे बी एबल टू चेंज इन फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल में हम उसको यूज करते हैं एज ए टॉपिकल एजेंट, अगर कुछ कटा वगैरह होगा तो हम एज ए एज अ टॉपिकल एजेंट बोल के हम उसको यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टेंट बोल के यूज़ करते हैं उसका। देन फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें भी हम एस्ट्रिंजेंट, रिस्पायरेटरी, हिप्नोटिक, एक्सपेक्टोरेंट हम उसको यूज़ करते हैं। सब में बी यूज्ड एज अ करेक्टिव इन इन्फेक्शंस लाइक डेंटल प्रोडक्ट, एंटीडोट्स, एंटीमाइक्रोबियल, इसमें भी हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं। दोज दैट फाइंड एज द फार्मास्यूटिकल एड्स, फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए जो भी हमें हेल्पिंग सब्सटेंस लगते हैं, फार्मास्यूटिकल हेल्पिंग सब्सटेंस लगते हैं, वो भी इनऑर्गेनिक के होते हैं, जैसे कि बेंटोनाइट, टाल्क, एंटीऑक्सीडेंट, पिगमेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। दोज दैट फाइंड इन एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के लिए भी हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसे कि टाइट्रेंट प्रोसेस में, टाइट्रेशन प्रोसेस में हम टाइट्रेंट यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, EDTA। देन दो आल्सो एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज दोज दैट फाइंड यूज एज अ रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं उसमें एज अ रिएजेंट बोल के, मतलब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज अ रिएजेंट, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द रिएक्शन करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए हम एज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं। सम यूज एज अ कैटलिस्ट, जैसे कि प्लेटिनियम, निकेल, क्लोरल, बहुत सारे पाथवेज देखते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस देखते हैं, उसकी रिएक्शंस होने के लिए हमें कैटलिस्ट लगता है, उसकी रिएक्शन बूस्टअप करने के लिए हम कैटलिस्ट देखते हैं, कैटलिस्ट रहते हैं उसमें, तो उसके लिए हम प्लैटिनम, निकेल, क्लोरल यूज करते हैं, एंड दिस इज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज एज द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक क्रोमिक एसिड, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्रेट। सम एज द एड्जॉर्बेंट इन क्रोमेटोग्राफी, जब भी हम TLC करते हैं, कोई क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसमें हमें सिलिका जेल लगता है, एंड दिस सिलिका जेल एल्यूमिना की ज़रूरत लगती है हमें, एंड दिस इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देन
ये हो गया हमारा पूरा इनऑर्गेनिक के बारे में कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एंड देन उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर उसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया। Pharmacopoeia is derived from the ancient Greek word pharmakon means drug and copia means to make. Pharmakon means drug and copia means to make. तो ये दो वर्ड से मिला के हो जाता है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया इज अ बुक ऑफ डायरेक्शंस एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ मेडिसिन, इट जनरली पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी। फार्माकोपिया एक बुक होता है जो हमें डायरेक्शन देती है कि किस तरीके से हम मेडिसिन प्रिपेयर करें। ये अथॉरिटी वगैरह पब्लिश करती है, जो भी हमारा अथॉरिटी होती है वो पब्लिश करती है। देखो, कोई भी चीज़ बनाने के लिए पहले हमें उसको नॉलेज नहीं होता, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। कोई भी चीज़ हम स्टैंडर्ड चीज़ से कंपेयर करते हैं एंड देन प्रिपेयर करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड कहाँ पे होता है, वो हम फार्माकोपिया में मेंशन किया जाता है कि किस तरीके से मेडिसिन प्रिपेयर किया जाए या किस तरीके से कोई फॉर्मूला प्रिपेयर किया जाए। The pharmacopoeia is a legalization of a country which is set of standards and obligatory quality indices for the drug, raw material used to prepare them and various pharmaceutical preparation. देखो, फार्माकोपिया जो होता है हर एक कंट्री अपने अपने स्टैंडर्ड सेट करती है, देन उसके अकॉर्डिंग टू वो ड्रग बनाती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग टू वो रॉ मटेरियल यूज़ करती है, बाकी की चीज़ें यूज़ करती है फॉर द मेकिंग द फार्मास्यूटिकल डोसेज, फॉर में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। वो बनाने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूलाज लगता है एंड दिस फार्मूला इज मेंशन इन दिस फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया इज द स्टैंडर्ड बुक, देन it is legally binding collection preparation by the national or regional authority and contain the list of medicinal substance, crude drugs and formulas for making the preparations for them. उसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि लीगली मतलब वो उसके अंदर उस कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, प्रिपरेशंस किस तरीके से किया जाता है, देन the list of pharmaceutical substance formulas along with the description and standard source, test, usage, dosage and storage condition. तो फर्स्टली जो भी हम मेडिसिनल प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी हम चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड उस फार्माकोपिया के बुक में दिया जाता है। मतलब वो उसका कलेक्शन किस तरीके से है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, देन उसके फॉर्मूलेज क्या है, देन उसका स्टोरेज फॉर्म क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका सोर्स क्या है, पूरी चीज़ें फार्माकोपिया में मेंशन की जाती है। देन टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया अकॉर्डिंग टू, देखो फार्माकोपिया नेशनली रहते हैं, जैसे कि अगर मैं इंडिया में स्टडी कर रही हूँ तो आई विल यूज़ इंडियन फार्माकोपिया। मैं इंडिया में कोई डोसेज प्रिपेयर कर रही हूँ तो आई विल यूज़ द इंडियन फार्माकोपिया। अगर मैं ब्रिटिश में कर रही हूँ तो मैं वहाँ का ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ करूँगी। अगर मैं चाइना में कर रही हूँ तो मैं चाइनीज़ फार्माकोपिया यूज़ करूँगी। जापान में कर रही हूँ तो मैं जापानीज़ फार्माकोपिया यूज़ करूँगी। तो अकॉर्डिंग टू द नेशन वो अपने अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। These types: national pharmacopoeia, United States pharmacopoeia, then Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia, then Japanese pharmacopoeias, then German pharmacopoeia, regional में आता है European pharmacopoeia. Then important is the history of pharmacopoeia. व्हाट इज द हिस्ट्री, कहाँ से फार्माकोपिया किस तरीके से डेवलप हुआ, फर्स्ट फार्माकोपिया किसने डेवलप किया, कौन से कंट्री ने डेवलप किया, फिर उसके बाद कितने उसके एडिशंस आए, वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में देखेंगे। द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया वॉज रिलीज ऑन 15 दिसंबर 1920। देखो, फर्स्ट जो फार्माकोपिया रिलीज़ किया गया वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने रिलीज़ किया 15 दिसंबर 1820 में। देन उसके बाद द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1864। इट वॉज इंक्लूड द मोनोग्राफ ऑफ बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टैनिक एसिड, कैम्फर, लैक्टोज, सुक्रोज, अल्कलॉइड्स विद देयर साल्ट्स। ब्रिटिश फार्माकोपिया ने अपनी फार्माकोपिया पब्लिश की
1864 में, and that it include the monograph of benzoic acid, gallic acid, tartaric acid. Monograph means all the informations of the drug और स्पेसिफिक ड्रग, जैसे कि मोनोग्राफ ऑफ बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, बेंजोइक एसिड का टाइटल क्या है, मतलब उसका कॉमन नेम क्या है, उसका ऑफिशियल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है उसका, देन उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन चीज़ें क्या है, उसकी लिमिट टेस्ट मतलब लिमिट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ क्या है, उसके ऐसे, देन उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो पूरी चीज़ें वो मोनोग्राफ में उसके बारे में मेंशन की जाती है। देन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अब हम देखेंगे कि हमने ब्रिटिश फार्माकोपिया देखा, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया देखा, बट हमारी इंडिया में कब फार्माकोपिया रिलीज हुआ एंड क्या उसकी हिस्ट्री है। इन इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज एम्प्लॉयड एज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड। देखो इंडिया में पहले प्री इंडिपेंडेंस से पहले हम ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज करते थे एज अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद इन इंडिया फर्स्ट फार्माकोपिया हैज बीन पब्लिश बंगाल फार्माकोपिया इन 1844। 1844 में एक बंगाल फार्माकोपिया पब्लिश हो गया इंडिया में। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a permanent Indian Pharmacopoeia Committee in 1948 for preparing the Indian under the chairmanship of डॉक्टर B.N. घोष। फिर हमारे जो इंडिया का गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया चाहिए, तो इसीलिए उसने एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी का नाम था इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। उसके चेयरमैनशिप थे डॉक्टर B.N. घोष। 1948 में उसकी कमेटी बैठी एंड उस कमेटी ने 1955 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया was published in 1955 under the chairmanship of Dr. B.N. Ghosh. Indian Pharmacopoeia Commission is autonomous institution, Ministry of Health and Welfare, which state standard for all drugs and are manufactured, sold, consumed in India. तो जो IPC कमेटी होती है एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, जो पूरे ड्रग के पूरे केमिकल्स के स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर, सोल्ड एंड जो भी इंडिया कंज्यूम करता है वो पूरे उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया देखो फर्स्ट तो हमारा 1955 में आ गया, फिर उसके बाद हमारे कितने फार्माकोपिया आए, कितने एडिशन आए, उसकी हम लिस्ट देखते हैं। तो फर्स्टली टेबल ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। फर्स्ट इसमें मैंने एडिशन मेंशन किया है, सेकेंड इसमें ईयर, थर्ड इज अ सप्लीमेंट एंड फोर्थ इज अ वॉल्यूम। तो फर्स्ट एडिशन इन 1955, द सप्लीमेंट इज 1960 एंड वॉल्यूम इज फर्स्ट। सेकेंड एडिशन इज 1966 एंड दिस सप्लीमेंट, उसकी सप्लीमेंट 1975 में आई। थर्ड एडिशन इज 1985, उसकी सप्लीमेंट 1989 में एक आई और 1991 में एक आई, उसके दो वॉल्यूम थे। फोर्थ एडिशन जो है वो 1996 में आया, उसके सप्लीमेंट 2000 में एक आई, 2000 में दो सप्लीमेंट, उसका दूसरा सप्लीमेंट आया एंड 2005 में उसका तीसरा सप्लीमेंट आया। फिर फिफ्थ एडिशन उसका 2007, फिफ्थ एडिशन इन 2007 एंड उसका सप्लीमेंट आया 2008। सेवेंथ सिक्स्थ एडिशन 2010 में आया एंड उसका सप्लीमेंट 2012 में आया। देन सेवेंथ एडिशन 2014 में आया और उसका सप्लीमेंट, फर्स्ट सप्लीमेंट 2015 एंड सेकेंड एडिशन, सेकेंड सप्लीमेंट 2016 एंड लास्ट हमारा 8 जो है इन 8th एडिशन हमारा 2018 में आया और उसके सप्लीमेंट 2019 एंड सेकेंड सप्लीमेंट 221 में आया। उसके बाद हमारा लेटेस्ट जो एडिशन है वो हमारा 2022 में आया था, 9th एडिशन 2022 में आया है और उसके सप्लीमेंट आने की बाकी है। हमारा लेटेस्ट एडिशन 2022 का है, 9th एडिशन। तो ये टेबल फॉर्म है, वन बाय वन हम एक एक
एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन से उसके चेयरमैनशिप थे, कब आया था, हर एक चीज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो 1940 कैसे प्रोसेस शुरू हुई देखो। फर्स्ट 1944 में प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग फर्स्ट फार्माकोपिया स्टार्टेड। हमने शुरुआत की कि हम अभी फार्माकोपिया डेवलप करेंगे। 1948 में हमने कमेटी बैठाई, लाइक इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। इंडियन एक कमेटी, इंडिया के गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी 1948 में, जिसको काम दिया गया कि बेटा आप इंडियन फार्माकोपिया प्रिपेयर करो। देन 1955 में फर्स्ट एडिशन आया हमारा इंडियन फार्माकोपिया का, वॉज पब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। डॉक्टर बी एन घोष चेयरमैन थे, उनके अंडर उन्होंने एक मतलब उनकी और उनके टीम ने 1955 में फर्स्ट एडिशन हमारा इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश किया। देन 1960 में उसी का एक सप्लीमेंट आ गया। 1966 में हमारा सेकेंड एडिशन आया, उस टाइम के चेयरमैन थे डॉक्टर बी मुखर्जी। उसका सप्लीमेंट 1975 में आया, उसी सेकेंड एडिशन का सप्लीमेंट 1975 में आया। देन हमारा जो थर्ड एडिशन है वो 1985 में आया, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। फर्स्ट एडिशन के चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष, सेकेंड एडिशन की चेयरमैनशिप थे डॉक्टर बी मुखर्जी, एंड हमारा जो थर्ड एडिशन है उसके चेयरमैनशिप है डॉक्टर नित्यानंद। उसके दो सप्लीमेंट आए उसके 1989 में और 1991 में। देन हमारा फोर्थ एडिशन 1996 में आया, उसके चेयरमैनशिप भी डॉक्टर नित्यानंद ही थे। फिर हमारा उसी 1996 जो फोर्थ एडिशन था उसके ही 3 सप्लीमेंट्स आए, 2000 में एक आया, 2002 में एक आया और 2005 में एक आया। 2007 में हमने फिफ्थ एडिशन डेवलप किया, फिफ्थ एडिशन प्रिपेयर किया, उसके चेयरमैन भी डॉक्टर नित्यानंद थे। फिफ्थ एडिशन इन 2007 एंड देन चेयरमैनशिप इज डॉक्टर नित्यानंद। देन उसी का सप्लीमेंट जो है फिफ्थ एडिशन का सप्लीमेंट 2008 में आया। 2010 में हमने सिक्स एडिशन पब्लिश किया, उसके चेयरमैन थे श्री के चंद्रमौली। उसके उनकी टीम के अंडर हमने 2010 में सिक्स एडिशन पब्लिश किया इंडियन फार्माकोपिया का। उसी की सप्लीमेंट 2012 में आई। 2014 में हमारी सेवेंथ एडिशन आई, उसके चेयरमैन थे गुलाम नबी आज़ाद, चेयरमैन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गुलाम नबी आज़ाद। देन उसी के सप्लीमेंट आए 2015 और 2016 में। देन 2018 में हमारा 8 एडिशन आया, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर सी के मिश्रा। वो हमारा 8 एडिशन था 2018 का। फिर 2018 के जो हमारे एडिशन है 8 एडिशन, उसके सप्लीमेंट 2019 और 2021 में आए। देन 2022 में हमारा लेटेस्ट एडिशन है 9th एडिशन जो पब्लिश हुआ 2022 में, एंड देन उसके चेयरमैन थे डॉक्टर सी के मिश्रा। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री है इंडियन फार्माकोपिया की। पूरे 9th एडिशन थे, फर्स्ट एडिशन 1955 में, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली एडिशन आते गए, एंड देन हमारा लेटेस्ट एडिशन है 9th एडिशन इन 2022 का। ये कुछ फोटोज है इंडियन फार्माकोपिया के, जैसे कि 1955 का एक है, 1996 का है, 2007 का है, 10 का है, देन 2014 का है, 2018, 2022 का जो लेटेस्ट एडिशन है वो भी है वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इंडियन फार्माकोपिया के बारे में स्टडी की है। अब हम देखेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया में क्या कंटेंट होता है, क्या चीज़ें होती है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। So mainly, mostly all pharmacopoeias, 3 main sections, namely introduction including general notice, monograph of all official drugs and appendix.
मतलब क्या होता है, देखो इंट्रोडक्शन होता है, क्या क्या जनरल नोटिस प्रोवाइड करते हैं। अगर कुछ पिछले का आप इससे पहले अगर अपने एडिशन की हुई है तो उसके बारे में उसके अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है, इस जो एडिशन है उसके अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है, तो वो सारी चीज़ें वो इंट्रोडक्शन में मेंशन की जाती है कि क्या क्या मेंशन किया गया है। देन कौन सी चीज़ें डिलीट की गई है, कौन सी चीज़ें को एडिशन, कौन सी चीज़ें ऐड की गई है, वो सब चीज़ें वो एडिशन में मतलब वो जनरल इंट्रोडक्शन में डालते हैं। देन मोनोग्राफ ऑफ ऑफिशियल ड्रग्स। मोनोग्राफ मीन्स किसी ड्रग की पूरी इंफॉर्मेशन, उसका पूरा क्या उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका बॉटनिकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, देन उसका मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है, उसका आइडेंटिटी टेस्ट क्या है, केमिकल नेचर क्या है, थेरेपेटिक पर्पस क्या है, पूरी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने जो बोला था, इट इज़ यूजफुल पॉइंटर। एंड थर्ड इज अपेंडाइसिस। अपेंडाइसिस में मेंशन किया जाता है कि हम किसी टेस्ट के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करें, किस तरीके से ऑपरेटर्स यूज़ करें, देन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करें, क्या रीडिंग होनी चाहिए, देन उसके बाद अगर हम कोई केमिकल टेस्ट कर रहे हैं तो वो केमिकल टेस्ट किस केमिकल्स को यूज़ कर कर की जाए, देन कौन से रिएजेंट कैसे प्रिपेयर किए जाए, अगर कोई रेफरेंस है तो उसको उस रेफरेंस सब्सटेंस को किस तरीके से प्रिपेयर करें, वो चीज़ें पूरे अपेंडाइसिस में मतलब मेंशन की जाती है। देन इंट्रोडक्शन। फर्स्टली जो भी कंटेंट होते हैं फार्माकोपिया में, उसमें फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, देन सेकेंड इज अ मोनोग्राफ एंड थर्ड इज अ अपेंडाइसिस। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन. It is a useful pointer to the pharmaceutical progress since last edition because it summarizes the various changes, addition, deletions in the current edition. अगर जो भी लास्ट एडिशन में हम जो भी इंट्रोडक्शंस का पॉइंट होता है उसके अंदर हम जो भी लास्ट एडिशंस होता है उसको समराइज करते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या एडिशन किया है, क्या क्या डिलीशंस किया है, वो चीज़ें मेंशन करते हैं वहाँ पर. Attention should be paid to general notice at the outset to avoid the misunderstanding, misinterpretations of the लेटर द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट. मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, इसलिए हम ये जनरल नोटिस है, जनरल इंट्रोडक्शन वहाँ पर देते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा मोनोग्राफ. तो व्हाट इज द डिफाइन एंड व्हाट इज मीन बाय मोनोग्राफ. तो फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ मोनोग्राफ. Monograph is a complete description of a specific pharmaceutical which include the nomenclature, classification, physical characteristics, dosage, purity, limits for impurities, identification, assay and storage condition. तो एक डेफिनेशन क्या है मोनोग्राफ की. मोनोग्राफ में हम उस ड्रग की हो या उस केमिकल्स की हो पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं, उस सब्सटेंस की पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे कि उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल नेचर क्या है उसका, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, डोसेज फॉर्म क्या है, प्योरिटी क्या है उसकी, देन उसके अंदर कितने अमाउंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, उसका ऐसे क्या है, हम किस तरीके से उसकी इंटीग्रिटी चेक करें, प्योरिटी चेक करें, एंड देन द स्टोरेज कंडीशन. Then purpose of the monograph provide the scientific information on the efficacy, safety, efficacy and quality control, quality assurance widely used in the medicinal plant. Then content of the monograph. First is the title. मतलब अभी जो मोनोग्राफ है तो हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से मोनोग्राफ में कौन से कंटेंट होते हैं. तो फर्स्ट जो भी अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई क्रूड ड्रग लिया है या कोई केमिकल सब्सटेंस है उसका हम मोनोग्राफ देख रहे हैं, तो फर्स्टली वो टाइटल रहेगा. टाइटल में हम रेफर करेंगे इंग्लिश नेम, उसका ऑफिशियल नेम क्या है कंपाउंड का,
ऊपर इसके सब टाइटल्स रहेंगे, कोई सिनोनिम है तो वो सिनोनिम भी हम उसके अंदर सारे सिनोनिम मेंशन करेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम आल्सो प्रिसिपिटेट चाक भी बोलते हैं। देन आयन एंड अमोनियम सिट्रेट कैन आल्सो कॉल्ड एज फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ये जो नाम है उसके जो सिनोनिम है हम वहाँ पर मेंशन करते हैं। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज आल्सो कॉल्ड एज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। तो उसके जो भी सिनोनिम्स है हम वो टाइटल में सब टाइटल में वो चीज़ें हम मेंशन करते हैं। देन फार्मूला वेट एंड मोलिकुलर वेट, उसका क्या फॉर्मूला है एंड क्या मोलिकुलर वेट है वो मेंशन करते हैं हम सेकेंड इसमें। देन थर्ड इज द कैटेगरी, क्या कैटेगरी है उसकी, हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं। उसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है, उसका थेरापेटिक पर्पस क्या है, थेरापेटिक एक्शन क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंग टू हम उसकी कैटेगरी डिवाइड करते हैं। जैसे कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, वो एज ए एंटासिड बोल के हम यूज़ करते हैं। देन हिमैंटिक बोल के हम उसको यूज़ करते हैं, लग्जेटिव में हम उसका यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स एड्स में यूज़ करते हैं, एस्ट्रिडेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कि हिमैंटिक है तो हिमैंटिक में हम फेरस सल्फाइड सब्सटेंस यूज़ करते हैं, अगर इमिटिक रहा तो हम कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द थेरेपेटिक एजेंट। तो उसकी कैटेगरी क्या है, अगर वो एंटासिड है तो वहाँ पर हम मेंशन करेंगे दैट इज एंटासिड, अगर वो हिमैंटिक है तो वहाँ पर हम मेंशन करेंगे कैटेगरी में दैट इज हिमैंटिक। देन नेक्स्ट है डोज, these are the quantity for the guidance of the prescribed or the physician to achieve the desired therapeutic effect in adult. It can be altered when it's required. एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट डोज 1 to 5 ग्राम। तो इस तरीके से डोज हम मेंशन करते हैं कि कितना मेंशन होना चाहिए डोज, कितने अमाउंट में हम डोज देते हैं। तो वो हम पूरी चीज़ें डोज में मेंशन करते हैं कि कितने अमाउंट में वो डोज देना चाहिए। दिस इज ओमिटेड फॉर द सब्सटेंस नॉट यूज्ड फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। यूजुअल स्ट्रेंथ में बी गिवन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म लाइक इंजेक्शन, उस कौन से क्या कैटेगरी में हम उसको दिए जाते हैं वो चीज़ें वहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि हम इंजेक्शन में दें उसको या ओरली दें या इंटरनली यूज़ करना है या नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो कितने अमाउंट में करना है, वो चीज़ें पूरे हम डोज पे मेंशन करते हैं। Then next है description. Description, this give the physical description of the substance like crystalline है, वो amorphous nature का है, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका odor क्या है। The properties has the preliminary evaluation of the integrity of an article and not themselves. The standard or test of purity. Example calcium, मतलब उसका एक physiological purposely evaluation होता है, प्रिलिमिनरी वैल्यूएशन होता है, उसको हम उसकी प्यूरिटी चेक करना या उसका स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते, मतलब स्टैंडर्ड चेक करने के लिए हम दूसरे केमिकल टेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, बट एक फिजियोलॉजिकली जो उसका फर्स्ट प्रिलिमिनेशन रहता है कि किस तरीके से उसका ओडर है, क्या टेस्ट है, देन क्या उसका नेचर है, तो उस तरीके से हम उसको वो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो फाइन नेचर का होता है, वाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं। Solubility is described in the popular terms which are defined in the pharmacopoeia under the general notice. They are usually given in water, sometimes in hot or boiling water, in alcohol, glycerol, solvent, ether, other organic solvent, acid और alkalis. कोई भी सब्सटेंस है तो कितना अमाउंट में वो वाटर में डिजोल्व है, मतलब डिजोल्यूशन मतलब उसका सॉल्युबिलिटी कितना लेवल है, सॉल्युबल है या नहीं है, वाटर में कितना है, हॉट वाटर में कितना है, अल्कोहल में क्या है उसका, मिथेनॉल में क्या उसकी सॉल्युबिलिटी है, वो पूरी चीज़ें हम वहाँ पर सॉल्युबिलिटी में मेंशन करते हैं। Then standards, it is an important part of the monograph which specify the quantity, purity of the compounds. It define the compositions, मतलब हम composition define करते हैं, जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड is having a not less than 98% of KBr with reference dried substance. देन आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, दिस इन्वॉल्व द स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट, हर एक ड्रग की या हर एक केमिकल्स की एक केमिकल टेस्ट दी जाती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कलर, उसमें कलर्स रिएक्शंस होते हैं, प्रेसिपिटेस रिएक्शंस होते हैं या गैस इन्वॉल्व हो सकता है,
आर कॉमनली यूज इन द इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, लाइक जैसे कि फिनॉल है, तो फिनॉल अभी हमें टेस्ट करना है कि फिनॉल, जो फिनॉल है हमारे पास, तो वो फिनॉल है या नहीं है, उसकी टेस्ट करने के लिए हम उसके अंदर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे एंड इट गिव्स द वायलेट कलर, सो इट्स मे बी द फिनॉल। तो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं हाँ ये फिनॉल हो सकता है। देन पीएच वैल्यू हम ऑल्सो वहाँ पे मेंशन करते हैं इंडियन फार्माकोपिया में कि क्या पीएच है उसका, जैसे कि अमोनियम कैल्शियम अमोनियम सैलिसिलेट 2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, तो उसका पीएच 6 to 8 में रहना चाहिए। देन लिमिट्स ऑफ इम्प्यूरिटी अगर है कोई सब्सटेंस में, अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए वो हम फार्माकोपिया में मेंशन करते हैं। जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसके अंदर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी हो सकती है, क्लोराइड की, सल्फर की, हेवी मेटल्स की, तो उसकी कितने अमाउंट में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए वो हम फार्माकोपिया में मेंशन करते हैं। एंड देन उस केमिकल्स जो भी सब्सटेंस है उसको हम उसकी हम लिमिट टेस्ट करते हैं। अगर उससे ज़्यादा उसके अंदर प्यूरिटी उससे ज़्यादा अगर उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ है तो हम उसको यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके से उसको चेक किया जाता है कि उसकी लिमिट फॉर इम्प्यूरिटीज़ है क्या। तो पूरी लिमिट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ फार्माकोपिया में मेंशन की जाती है। देन ऐसे टेस्टिंग द ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन, जैसे कि आप देखो लिमिट फॉर इम्प्यूरिटीज, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आगे नेक्स्ट पार्ट में पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि क्या होता है लिमिट टेस्ट, क्या होती है इम्प्यूरिटीज, उसके सोर्सेस क्या है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड देन लिमिट टेस्ट, कौन से लिमिट टेस्ट है, तो उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है ऐसे में टेस्टिंग द ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन द प्यूरिटी एंड इंटीग्रिटी। इट इज द स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल एनालिटिकल मेथड फॉर एक्टिव सब्सटेंस। If the assay method described in the pharmacopoeia is applied to the chemical, then the standard prescribed in the monograph earlier should be realized for the most inorganic pharmaceutical titrametric gravimetric methods are used। मतलब हम उसमें स्टेप बाय स्टेप एनालिटिकल मेथड फॉर्म करते हैं, उसके फार्माकोपिया में वो पूरी मेथड डिस्क्राइब की जाती है। बाय यूजिंग द ग्रेविमेट्रिक टाइट्रीमेट्रिक मेथड से हम उस केमिकल सब्सटेंस की प्यूरिटी चेक करते हैं, उसकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं। देन स्टोरेज, दिस इज द लास्ट आइटम्स अंडर द मोनोग्राफ, दिस डायरेक्शंस आर यूजफुल। देखो स्टोरेज है तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल्स है तो उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरेज कंडीशन वो लॉन्ग टर्म तक हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। This is the directions are useful in the preserving the activity of the chemical. Then these are the generally brief and general intended, more guidance then as the condition। मतलब अगर हमें उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में प्रिजर्व करना है या हमें उसको फ्रीज में प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है, या फ्रीज में उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती है। देन फार्माकोपिया, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल और फार्माकोपिया यूजेस द टर्म्स लाइक वेल क्लोज कंटेनर में हम उसको स्टोर करते हैं, टाइटली क्लोज कंटेनर होना चाहिए, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर होना चाहिए, अंबर और डार्क कलर कंटेनर होना चाहिए, कूल प्लेसेस में हम उसको कंट्रोल करें, स्टोर करें, देन सिंगल डोज कंटेनर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसकी स्टोरेज कंडीशन वहाँ पे मेंशन करते हैं। अपेंडिसेस, लास्ट पार्ट इन कंटेंट ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया, मतलब फार्माकोपिया में फर्स्ट हमारा था इंट्रोडक्शन, सेकेंड था मोनोग्राफ एंड थर्ड इज अपेंडाइसिस। देन अपेंडाइसिस में मोस्टली देखो अपेंडाइसिस नंबर 1 यहाँ पे मैंने टेबल दिया हुआ है। नंबर 1 अपेंडाइसिस में, नंबर 1 की इसमें अपेंडाइसिस में एपरेटर्स फॉर द टेस्ट ऑफ एसे, तो पूरी एपरेटर्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है जो हम एसे के लिए एपरेटर्स वगैरह यूज करते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार मोनोग्राफ में बोला था कि इसके ऐसे करना है बाय यूजिंग द ग्रेविमेट्रिक या टाइट्रीमेट्रिक मेथड, तो वहाँ पर कौन से एपरेटर यूज करते हैं उसकी पूरी डिटेल में स्टडी, किस तरीके से एपरेटर्स होनी चाहिए, कैसी मार्किंग होनी चाहिए, कितनी मार्किंग होनी चाहिए, पूरी चीज़ें वहाँ पर उस अपेंडिक्स में मेंशन की जाती हैं। सेकेंड जो अपेंडिक्स है उसमें बायोलॉजिकल टेस्ट एंड द ऐसे, वहाँ पर बायोलॉजिकल टेस्ट और उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। देन थर्ड में केमिकल टेस्ट एंड द ऐसे, थर्ड इसमें केमिकल टेस्ट
जो भी परफॉर्म बताया गया है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, ये केमिकल टेस्ट परफॉर्म करना है, तो उस केमिकल्स को किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से बनाए, वो पूरी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती है। थर्ड में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट एंड ऐसे। फोर्थ में फिजिकल टेस्ट एंड डिटर्मिनेशंस, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिफ्थ अपेंडिक्स में बताया जाता है। सिक्स में जनरल इंफॉर्मेशन। 7 में रिएजेंट एंड सॉल्यूशन, जो भी हम रिएजेंट केमिकल टेस्ट के लिए या कोई भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए ऐसे के लिए रिएजेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो रिएजेंट किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए वो पूरा वहाँ पर दिया जाता है। 8 में रेफरेंस सब्सटेंस, अगर हम टेस्ट करें तो उसके साथ हम एक उसको देखने के लिए हम उसको रेफरेंस के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो रेफरेंस सब्सटेंस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो 8 अपेंडिक्स में दिया जाता है। एंड 9 इज अ टेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन से टेबल्स, पूरे टेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, फिर फार्माकोपिया में जो भी कंटेंट है, जैसे कि इंट्रोडक्शन था, जनरल नोटिस, देन मोनोग्राफ एंड देन अपेंडिक्स। एंड देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू, आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज और लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एंड पार्ट 2 वी विल बी अपलोड वेरी सून। अगर ये जो पीपीटी है, इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर चेक करो। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच।